Hello friends, welcome to Sankar Competitive Classes, and today our lecture is about intelligence. So intelligence is a key construct employed to know how individuals differ from one another. So हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा variations in individual differences, right? Variations in individual differences. Variations means variability, right? Differences. जो differences एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से अलग थलग करते हैं, that is known as variations. And in the previous lecture हमने clearly समझा कि biological differences तो होते हैं, but we also having we are having psychological attributes में भी difference होते हैं, right? And we started कि जो mainly psychological attributes कौन कौन से होते हैं. Mainly psychological attributes है आपकी intelligence, आपकी creativity, आपका aptitude, आपकी personality, आपकी values, right? So psychological attributes में variations is one of the major thing. And in the previous lecture, if I remember it clearly, हमने ये point बोला था कि for most of the psychologists, intelligence was a very fascinating idea. काफ़ी psychologists के लिए intelligence पे काम करना बड़ा fascinating idea था to know कि एक इंसान दूसरे इंसान से intelligent कैसे है, एक इंसान का IQ why is more than the other person. So that was a very important fascinating thing for major psychologists. And intelligence एक key construct का role play करता है to know how एक individual दूसरे individual से अलग कैसे हो सकता है. For example, there is an A individual and there is a B individual, and मतलब we just want to know who is more intelligent than whom, right? And psychologists, intelligence is something, it's a key idea जो एक इंसान को A को different रखता है B से, right? So exactly अगर पढ़ा जाए तो अगर सोचा जाए इंटेलिजेंस है क्या. Intelligence is a global capacity to understand the world, think rationally and face challenges. So intelligence को 3 components में divide किया है. It's a capacity, एक individual की capacity, right? उसकी world के लिए understanding, उसका think rationally करना और face challenges को open रखना, that is known as intelligence. So intelligence is nothing, it's a global capacity, एक ability, एक capacity, एक of individual to understand the world जिसमें वो रह रहा है, to understand the basic norms of the world, to have a rational thinking. Rational means what is right and what is wrong, and if I'm going to do this, if I'm going to opt for this particular thing, exactly उसके consequences कैसे होंगे, that is the meaning of rationally, and to face hindrances and the challenges and obstacles in life head on. So that is exactly a capacity of intelligence, that is exactly a capacity of an individual, right? It also provides an understanding how people adapt their behavior to the environment they live in. So intelligence का major ये है, intelligence has been divided into this कि what is intelligence? It's an ability, एक capacity, एक ability of an individual जिससे वो understand करता है world के mechanism को, जिस mechanism जो world का mechanism कैसे चल रहा है, he is having an understanding for that. He is thinking rationally whether what he is doing is right or wrong, and the option या जो उसने opportunity grab की उसके consequences क्या होंगे, and he is facing the hindrances and obstacles head on. That is intelligence. And intelligence ऐसा भी एक understanding भी है कि एक लोग अपने environment में adapt कैसे करते हैं, adaptation to their environment, of their behavior to the environment they live in, that is also intelligence, right?
एंटायर सोशल होने से कि एंटायर सोसाइटी के चलने से इट इज़ लाइक इंटेलिजेंस एक अंडरस्टैंडिंग देता है कि आप अपने बिहेवियर को अडेप्ट कैसे करेंगे, मॉडिफाई कैसे करेंगे और शेप अप कैसे करेंगे टू इन द इन्वायरमेंट दैट यू आर लिविंग इन. दैट इज एक्चुअली इंटेलिजेंस. Next is, so what we're going to study is, in this section we will read about intelligence in its various forms. Psychological notion of intelligence is quite different from the commonsensical notion of intelligence. So that is a very basic fact. साइकोलॉजिकल नोशन ऑल टुगेदर बहुत डिफरेंट रहती है. एक लिंगो है इंटेलिजेंस और एक ओपिनियन है, एक थ्योरी है इंटेलिजेंस की, एक प्रॉपर डेफिनेशन है इंटेलिजेंस की जो साइकोलॉजिस्ट ने डेसिफर की है. दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ कॉमन सेंसिकल फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस. व्हाट इज अ कॉमन सेंसिकल नोशन ऑफ इंटेलिजेंस? कॉमन सेंसिकल नोशन यही है कि अगर एक कॉम्पिटिशन है या एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या कोई भी एग्जाम है आपके लाइफ का, एंड यू आर स्कोरिंग मोर इन दैट एग्जाम, दैट मीन्स यू आर मोर इंटेलिजेंट देन द रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन दैट पर्टिकुलर एग्जाम. एक पर्टिकुलर एग्जाम में कॉमन सेंसिकल नोशन इंटेलिजेंस की ये रहती है, जो लेमैन इंटेलिजेंस है, दैट इज यू आर स्कोरिंग हाई मार्क्स इन अ पर्टिकुलर एग्जाम, आप सक्सेसफुल हो, यू हैव ग्रैब्ड अ गुड जॉब, दैट इज अ कॉमन सेंसिकल फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस. ये लेमैन लैंग्वेज है कि जो वो फलान बंदा ज्यादा इंटेलिजेंट है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द पीपल, बिकॉज उसके पास जॉब भी है, उसने काफी अच्छा स्कोर भी किया, एंड ही स्टेबल एंड ही इज क्वाइट स्टेबल इन हिज लाइफ. दैट implies कि वो काफी इंटेलिजेंट है एज कम्पेयर टू अदर पीपल. बट साइकोलॉजिकल नोशन ऑल टुगेदर बहुत डिफरेंट रहती है एज कम्पेयर टू द लेमैन नोशन. साइकोलॉजी कहती है इट्स नॉट इनफ कि आप स्कोर करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, दैट इज नॉट इनफ, दैट इज नॉट द बेसिक मेजरमेंट एक इंसान के इंटेलिजेंस को असेस करने के लिए. वी नीड टू असेस the intelligence of a particular person on his understanding of the world, on his thinking rationally about the world, and how he's adapting his or her behavior in the environment that he is living in. That is the psychological notions of intelligence. I guess till then it is very clear, right? So and क्वेश्चन आता है कि अगर आपको मेजर करना है, असेस करना है किसी पर्टिकुलर इंसान की इंटेलिजेंस, सो हाउ यू कैन मेजर द पर्टिकुलर एक इंसान की मेजर इंटेलिजेंट पर्सन. सो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी आप कैसे करेंगे? हम तो बोल रहे हैं कि कॉमन सेंसिकल, हमें सिर्फ उसके मार्क्स नहीं देखने, हमें ये नहीं देखना कि अगर वो एग्जाम में अपेयर हुआ है उसने कौन सा रैंक स्कोर किया है. हमारे लिए साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग दिस इज नॉट द क्राइटेरिया टू मेजर एन इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन. हम कहते हैं अगर हमें एक इंटेलिजेंट पर्सन को असेस करना है, हम उसमें क्या देखते हैं? वी आर लाइकली टू सी इन हिज और हर एट्रीब्यूट्स, उसकी मेंटल अलर्टनेस कैसी है, ठीक है, हाउ मच अलर्ट ही इज इन हिज इन्वायरमेंट, हाउ मच कितना रेडी विट है उसकी, लाइक रिफ्लेक्स एक्शंस कैसी है कि अगर एकदम से फ्लाइट एंड फाइट आती है तो व्हाट ही इज गोना ऑप्ट फॉर, वेदर ही इज गोना फाइट इट आउट और वेदर ही इज गोना टेक अ लीव, इग्नोर इट आउट. सो रेडी विट, राइट, विजडम है, एक अंडरस्टैंडिंग है, एक पर्पसफुल एनालिसिस है उसका प्रॉपर. देन क्विकनेस, ग्रास्पिंग पावर बहुत शार्प है. No matter what he is doing, no matter which skill he is learning, he is very quick in that, acquiring that. That is intelligence actually. And to understand the relationships and understand the basic एक जो bonds होते हैं and the relationships, how one has to interact in the society, because we are a social animal, right? We have to live in the society. Somehow we have to comply with the norms of the society. So intelligence में ये factors बहुत important होते हैं कि एक इंसान की mental alertness कैसी है, उसका कितना quick reflex है, right? उसका ready wit, how much wisdom he is having it about a particular thing, and moreover उसका grasping power कितना अच्छा है, quick learner है, and how much he is understanding the relationships, right? जिस सोसाइटी में वो रह रहा है, जिस सोसाइटी में वो इंटरैक्ट कर रहा है अलग लोगों से, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स देम कितनी अच्छी है. दैट इज अ बेसिक क्राइटेरिया टू असेस एन इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी. सो देन वी हैव Oxford Dictionary of Intelligence, right? So Oxford Dictionary explains intelligence as the power of perceiving, learning, understanding and knowing.
सो ऑक्सफोर्ड के अकॉर्डिंग, अब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर डेफिनेशन उन्होंने इंटेलिजेंस की दी है. इफ यू गोना फाइंड आउट द इंटेलिजेंस, definition of intelligence, it's a definition of intelligence according to Oxford Dictionary कि intelligence है क्या. सिंपल से एक बात है कि it's a power of perception. आप वर्ल्ड को अंडरस्टैंड कैसे करते हो, हाउ यू आर परसीविंग द वर्ल्ड, आपकी एनालिसिस, आपकी इवैल्यूएशन फॉर द वर्ल्ड कैसी रहती है, दैट इज द इंटेलिजेंस. देन हाउ मच लर्निंग यू आर पुटिंग इट, आप कितने अच्छा लर्न कर पा रहे हैं, कितने क्विक लर्न कर पा रहे हैं एक पर्टिकुलर स्किल को, दैट इज इंटेलिजेंस. And you're understanding and knowing the facts of the world, that is intelligence. So according to Oxford Dictionary एक बड़ी simpler और बड़ी exact definition उन्होंने दी है कि it's a power of your perception, how you're perceiving, how you're learning, how you're understanding, and how you are well knowing the world, that is your intelligence. Then आप जरूर मतलब बिफोर दैट साइकोलॉजिस्ट ने काम किया, उससे पहले एक अर्ली जो था intelligence also use these attributes in defining intelligence. Before that, before the psychologists started working on this particular subjects, लोगों के अकॉर्डिंग, सो एक कल्चर में डेफिनेशन तो होगी ना इंटेलिजेंस की, कि जब सिविलाइजेशन कोई भी बनी उसमें हाउ दे आर डेसिफरिंग कि एक पर्टिकुलर पर्सन इंटेलिजेंट है दूसरे इंसान से. सो इन दैट एक ट्रेडिशनल अप्रोच रही. एक फॉर एग्जांपल अगर लेट्स कंसिडर एक क्लैन था या एक ग्रुप ऑफ पीपल था जो हंटिंग करते थे, ठीक है. हंटिंग वाज द बेसिक ऑक्यूपेशन दैट टाइम. दे हंट करते थे, खाना लाते थे, खाना बनता था, सिंपल है. सो उनका लाइवलीहुड वाज बेस्ड ऑन हंटिंग. फॉर दैट सिविलाइजेशन इंटेलिजेंस क्या होगी, अब उस टाइम पे पढ़ेगा थोड़ी तो इंटेलिजेंट होगा, राइट. अकॉर्डिंग टू दैट सोसाइटी जहाँ पे सिर्फ आपका बेसिक लाइवलीहुड है कि जहाँ पर आप एनिमल को हंट डाउन करते हैं, फिर एनिमल को बनाया जाता है फायर में, एंड यू ईट इट. सो बेसिक चीजें हैं. सो उस टाइम पर मोस्ट प्रोबेबली इंटेलिजेंस वो थी कि जो अच्छा हंट करता था, बड़ा एनिमल हंट करता था. सो दैट इज द बेसिक जो डिफ्रेंशिएट किया जाता था कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट है एज कंपेयर टू द अदर वन. सो सॉरी. सो हु वाज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट जिसने आपका इंटेलिजेंस पे काम किया? दैट वाज डेफिनेटली एल्फ्रेड बाइनेट. सो साइकोलॉजिस्ट आए एंड द साइकोलॉजिस्ट स्टार्टेड वर्किंग ऑन द दिस पर्टिकुलर डोमेन. एक साइकोलॉजिकल डोमेन था इंटेलिजेंस, और जिन्होंने काम स्टार्ट किया, जिन्होंने थ्योरी स्टार्ट की. थ्योरी बिकॉज कोई भी एक पॉपुलर ओपिनियन होता है, कोई भी एक फैसिनेटिंग ओपिनियन होता है, तो उसके जो एक्सपर्ट्स होते हैं, एक्सपर्टीज एक फॉर्मुलेशन आती है, राइट. थ्योरीज बनती हैं एंड उन थ्योरीज को एडवोकेट किया जाता है इन द सोसाइटी. उसका देखा जाता है कि एग्जैक्टली उसका एप्लीकेबिलिटी, फंक्शनैलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर थ्योरी है. सो जो फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट था जिसने साइकोलॉजी इंटेलिजेंस पे ओपिनियन अपना दिया, दैट वाज एल्फ्रेड बाइनेट, राइट. एल्फ्रेड बाइनेट के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस है क्या एग्जैक्टली? एल्फ्रेड बाइनेट ने बहुत सिंपलर टर्म्स में, बहुत सिंपलर वर्ड्स में डिफाइन किया कि इट्स एन एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल जहां पे ही इज जजिंग वेल, he is understanding well, and he is reasoning well. So Alfred Binet was a very simple man. बहुत सिंपल डेफिनेशन थी, ज्यादा किचकिच था ही नहीं, कि इट्स एन एबिलिटी जहां पर आप जज वेल करते हैं, अंडरस्टैंड वेल करते हैं, एंड रीजन वेल करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड बाइनेट, who was the first psychologist जिसने इंटेलिजेंस पे काम किया? That was Alfred Binet, right? So according to Mr. Binet, intelligence is nothing, it's an ability, एक capacity है एक individual की, एक particular individual की, to judge well, understand well, and to reason well. That is all about the intelligence according to the Binet, right? Then उसके बाद जो दूसरे साइकोलॉजिस्ट आते हैं, दैट इज द विशलर. विशलर कहते हैं कि इतनी सिंपलर डेफिनेशन की, ठीक है, आप जज कर रहे हैं, आप रैशनली सोच रहे हैं, आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं नॉर्म्स को वर्ल्ड के, एंड देन यू आर नोइंग द फैक्ट्स. इट्स नॉट इतना वेल ऑफ भी डेफिनेशन नहीं है, देयर इज मोर टू इट. इंडिविजुअल सिर्फ इतना तो नहीं करता ना, एक वो इंटरैक्ट तो एक सोसाइटी में रहता है जहाँ पर वो लोगों के साथ इंटरैक्ट करता है. एक इन्वायरमेंट होता है, एक इन्वायरमेंट पूल होता है जहाँ पर उसको इंटरैक्ट करना पड़ता है. स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ करना पड़ता है, टीचर्स के साथ करना पड़ता है, ऑफिस में आपको कोलीग्स के साथ करना पड़ता है. सो देयर आर डिफरेंट इन्वायरमेंट जहाँ पे आपको इंटरैक्शन ऑफ ह्यूमंस की जरूरत है, राइट. एक आपका इन्वायरमेंट होता है, एक आपका बिहेवियर होता है, राइट.
So according to the another psychologist, कि एल्फ्रेड बाइनेट ने, जो मिस्टर बाइनेट ने बड़ी सिंपल दे दी डेफिनेशन कि इट्स एन एबिलिटी which included well of things, to reason well, to judge well and to know well. That is all intelligence. Intelligence को जी 3 डोमेन्स में आपने कैलकुलेट करना है, और जो इंसान इन तीनों में उतरेगा, that is more intelligent than the rest. According to Wechsler, this is not enough. एक इंडिविजुअल को असेस करने के लिए दिस कंसेप्ट इज नॉट इनफ. सो वेशलर के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि नहीं, to reason well, to judge well and to know well is okay, but adaptation to the environment is also very much important, right? Important to an individual, क्योंकि रहना तो उसने सोसाइटी में है, रहना तो उसने एक पूल में है, environment में, जहाँ पे उसको इंडिविजुअल्स के साथ इंटरैक्ट करना है, लिविंग बींग्स के साथ इंटरैक्ट करना है, राइट? So according to Wechsler, and Wechsler tests are more used than Binet's. Binet's का काफी criticism रहा है because काफी loopholes रहे हैं, because he has produced a very simple formulation. एक बड़ी simple theory आई थी उनकी, जो काफी psychologist को जब उसको applicability डाली गई उस theory की, जब उसे उतारा गया, टेस्ट किए गए उसके अकॉर्डिंग, that results were very poor, right? So according to Wechsler, intelligence आपका है कि it's a more widely used theory, and he understood intelligence in terms of its functionality, that is its value for adaptation to environment. So जहां बाइनेट कह रहे हैं कि it's only individual's way, कि आप reason well कैसे कर रहे हैं, आप judge well कैसे कर रहे हैं, वहीं पर वेशलर आपके कहते हैं जिनका टेस्ट वाइडली यूज होता है, उनके अकॉर्डिंगली हमें इंटेलिजेंस को उसकी फंक्शनैलिटी पे जज करना चाहिए कि इंसान अडैप्ट कैसे कर रहा है एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, दैट इज नोन एज इंटेलिजेंस, राइट? सो उसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं. So he defined it as the global and aggregate capacity of an individual to think rationally, act purposefully, and to deal effectively with his or her environment. So according to Binet, it's an ability of an individual to reason, to judge and to know well. Clear? Whereas on the other hand, Wechsler was not satisfied. Many psychologists was not satisfied with that very simple theory. एक बड़ा simple से theory के साथ people were not satisfied. That was not, वो environment में या वो society में fit ही नहीं हो रहा था. So according to Wechsler, आपकी इंटेलिजेंस एक ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी है इंडिविजुअल की, जहां पे वो सही गलत के बारे में सोचता है, पर्पसफुली लॉजिकली एक्ट करता है और इफेक्टिवली डील करता है अपने और इन्वायरमेंट के साथ. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, राइट? एंड ये कंसेप्ट यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, ये थ्योरी यहाँ पर सिर्फ खत्म नहीं हुई. द अदर जो साइकोलॉजिस्ट उसके बाद आए वेशलर के बाद, उनके अकॉर्डिंगली कि सिर्फ अडेप्टेशन टू द इन्वायरमेंट इनफ नहीं होता, कि आप सोसाइटी में या एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में अडेप्ट कैसे कर रहे हो, दैट इज ओनली नॉट द पर्पस ऑफ एन इंडिविजुअल. आप उसे शेप अप कैसे करते हो, आप उसे मॉडिफाई कैसे करते हो, आप चैलेंजेस में अपने आप को कैसे ढालते हो, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंट बंदा तो वही हुआ ना जो अडेप्ट नहीं, जो अपने बिहेवियर को मॉडिफिकेशन लाएगा, राइट? जो शेप अप करेगा, लाइक वाटर, वो टम्बलर की वाटर किसी में भी डालो तो वो उसकी शेप लेता है. वैसे कि इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस होती है कि उसे किसी भी चैलेंज में डाल दो, किसी भी चीज में डालो, वहीं पर अपने आप को मॉडिफाई कर देगा एंड ही विल बी लाइक प्रोड्यूसिंग द बेस्ट रिजल्ट्स. सो अकॉर्डिंग टू अनदर साइकोलॉजिस्ट, दे वर गार्डनर एंड स्टर्नर. गार्डनर एंड स्टर्नर के अकॉर्डिंग उन्होंने सजेस्ट किया कि इंटेलिजेंट इंडिविजुअल सिर्फ अडैप्ट नहीं करता बट ऑल्सो एक्टिवली मॉडिफाइज एंड शेप्स इट. सो लेट मी सम अप जो हमने अभी तक किया, कि एल्फ्रेड बाइनेट आपके पहले साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने इंटेलिजेंस पे काम करना स्टार्ट किया था. और बाइनेट ने बहुत सिंपल भाषा में कहा, इट्स एन एबिलिटी. इंटेलिजेंस कुछ भी नहीं है, एक एबिलिटी है टू जज वेल, टू रीजन वेल एंड टू नो वेल द सोसाइटी, राइट? बाइनेट के अकॉर्डिंग दैट इज इंटेलिजेंस. Whereas on the other hand, आपके जो दूसरे साइकोलॉजिस्ट रहे, दैट वर वेशलर, ही सेड दिस इज नॉट इनफ. इतना इनफ नहीं है टू नो, जज एंड अंडरस्टैंड वेल. नो, दिस इज नॉट इनफ. वी नीड टू सी द फंक्शनैलिटी ऑफ द इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस की एक्चुअली फंक्शनैलिटी है क्या? सो अकॉर्डिंग टू वेशलर, इंटेलिजेंस इज अडेप्टेशन टू हिज और हर एनवायरनमेंट. देन आफ्टर दैट जो अदर साइकोलॉजिस्ट आए, दैट वर गार्डनर एंड स्टर्नबर्ग, उनके अकॉर्डिंगली इंटेलिजेंस इज नॉट जस्ट एन अडेप्टेशन टू द एनवायरमेंट, इट्स अ मॉडिफिकेशन.
It's a shaping of the behavior according to the environment, deal effectively in the environment, that is known as intelligence. Clear है? I hope ये तीन चीजें कि बाइनेट क्या रिप्रेजेंट करते थे, वेशलर क्या रिप्रेजेंट करते थे, एंड आपके गार्डनर एंड स्टर्नबर्ग क्या रिप्रेजेंट करते थे, आई गेस दैट इज वेरी मच क्लियर टू यू, राइट? नाउ एज आई टोल्ड यू, एक इंपॉर्टेंट ओपिनियन जब आता है तो उसकी थ्योरीज भी आती हैं उसके साथ, राइट? एंड जो एक्सपर्ट्स होते हैं दे स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, और उसी की बदौलत वी हैड थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, राइट? सो अकॉर्डिंग टू थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, साइकोमेट्रिक थ्योरीज को दो चीजों में ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया। एक साइकोमेट्रिक अप्रोच थी, एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच थी, ठीक है? नया सा साउंड कर रहा है, राइट? साइकोमेट्रिक को स्ट्रक्चरल भी कहा जाता है अप्रोच। अब थ्योरीज तो बहुत आई, उन थ्योरीज को डेसिफर बाइफर्केट किया गया कि इंटेलिजेंस की थ्योरी है उसे दो में हम बाइफर्केट करते हैं। एक इंटेलिजेंस की थ्योरी है जो डील करती है साइकोमेट्रिक अप्रोच है, और दूसरी इंफॉर्मेशन अप्रोच है। सो व्हाट इज साइकोमेट्रिक? साइकोमेट्रिक अप्रोच होती क्या है? साइकोमेट्रिक अप्रोच कंसिडर्स इंटेलिजेंस एज एन एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज, aggregate of cognitive abilities. Can you please tell me cognitive abilities कौन कौन सी होती हैं? Cognitive ability is your learning, it's your memory, आपकी attention, आपकी perception, that is known as cognitive ability. So psychometric approach बड़ी सिंपलर अप्रोच थी जिसने कहा कि इंटेलिजेंस सिर्फ एक एग्रीगेट है, एक सम अमाउंट है आपकी एबिलिटीज का। ऑल टुगेदर आपकी जो एबिलिटीज हैं उनको हम साइकोमेट्रिक अप्रोच में डालते हैं, दैट इज अ सम ऑफ दिस। It expresses the individual performance in terms of single index of cognitive ability. So according to psychometric approach, एक इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस को अगर आपने जज करना है, इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को आपने जज करना है, so you need to focus on the single, उसके cognitive abilities को देखिए, right? For example, उसकी learning देखिए, उसकी attention देखिए, जो एक सिंगल इंडेक्स है cognitive abilities का, उसको उस पर बेस पर हम लोग साइकोमेट्रिक अप्रोच रखते हैं, राइट? Is that clear? Right? So एक सिंगल इंडेक्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज पर इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस या इंटेलिजेंस को जज किया जाता है, दैट इज नोन एज साइकोमेट्रिक अप्रोच। सो ऑन द अदर हैंड, ऑन द वेरी अदर हैंड, व्हेन वी हैड द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, एज द नेम सजेस्ट, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच का तो नाम ही जैसे सजेस्ट कर रहा है कि इट्स इंफॉर्मेशन जो प्रोसेस होती है और इवैल्यूएट कैसे होती है, दैट इज नोन एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। सो द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच डिस्क्राइब द प्रोसेसेस पीपल यूज इन इंटेलेक्चुअल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट? सो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर अप्रोच, यहाँ पर इंडिविजुअल एक प्रोसेस है कि एक इंसान अपनी रीजनिंग को कैसे यूज करता है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, अपनी इंटेलेक्चुअल रीजनिंग जो उसकी है। इट्स नॉट अबाउट द कॉग्निटिव एबिलिटीज, इट्स नॉट अबाउट उसमें लर्निंग कितनी अच्छी है, उसकी मेमोरी कितनी अच्छी है, उसकी अटेंशन कितनी अच्छी है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एक इंसान अपनी कॉग्निटिव, अपनी इंटेलेक्चुअल रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को यूज कैसे कर एक फंक्शनैलिटी लाता है, राइट? The major focus of this approach is how an intelligent person acts. So मैं क्लियरली आपको बताऊं, साइकोमेट्रिक के लिए जहां पर इंपॉर्टेंट था, एक एग्रीगेट था उसका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को, वो उस पर अप्रोच पर वो मेजर करते थे कि एक सिंगल इंडेक्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, व्हिच इज वेरी मच क्लियर। वेयर एज जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है उस अप्रोच के अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल एक कैसे करता है अपने इन्वायरमेंट में, दैट इज ऑफ द कंसर्निंग थिंग टू द इंफॉर्मेशन प्रोसेस, कि इंफॉर्मेशन तो दी जा रही है, उसके बाद उसे इंटेलेक्चुअल रीजनिंग से अपने उसे परसीव कैसे करेगा, उसे इवैल्यूएट कैसे करेगा, उसे प्रोसेस कैसे करेगा, दैट इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। और उसके बाद वो इस इंफॉर्मेशन को लेकर उसे एक्ट कैसे करेगा, दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, राइट? So rather than focusing on structure of intelligence or its underlying dimensions, information processing approach emphasize studying cognitive functions underlying intelligent behavior. So very simple thing is there. Just very simple thing is there. अगर हम इसे बिल्कुल वो करते हैं कि हमारे पास theories of intelligence है, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस है, जिसे हमने साइकोमेट्रिक,
बाइफरकेट किया और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में बाइफरकेट किया। ठीक है, ये दोनों अप्रोचेस हैं। इज दैट क्लियर? सो जो साइकोमेट्रिक आपकी अप्रोच थी वो कहती है कि इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन हिज सेट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज। कॉग्निटिव एबिलिटीज। जबकि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कहती है कि इंटेलेक्चुअल रीजनिंग कैसे यूज की जाती है, एक रीजनिंग एक पर्पसफुली और कैसे एक इंडिविजुअल एक्ट करता है, दैट इज योर हाउ एन इंडिविजुअल एक्ट्स, how an individual reasons well, that is your information processing approach. Next is, अब जब हमने दो अप्रोचेस डिस्कस की तो हर अप्रोच में साइकोलॉजिस्ट थे एंड साइकोमेट्रिक में तो एल्फ्रेड बायनेट ही थे, जिनका हमने पहले भी जिक्र किया। एल्फ्रेड बायनेट ने आपको बहुत क्लियरली, दैट सिंपल मैन क्लियरली डिफाइंड इंटेलिजेंस एज कि ठीक है, टू जज वेल, टू रीजन वेल एंड टू नो वेल द वर्ड. So Alfred Binet was the first psychologist who tried to formalize the concept of intelligence in terms of mental operations. Binet ने भी कैसे डिस्क्राइब किया इसको, ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल, ऑन द बेसिस ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज. उनसे पहले जो नोशन मैंने बताया, जैसे पहले भी बताया कि नोशन ऑफ इंटेलिजेंस तो थी कल्चर में, बट दैट वाज अकॉर्डिंग, दैट वाज अ कल्चरल इंटेलिजेंस. एक ट्रेडिशन के, एक कल्चर के, एक सोसाइटी के अकॉर्डिंग, उस टाइम पे एक पर्टिकुलर क्लान के अकॉर्डिंग जो इंसान वो पर्टिकुलर चीज बहुत अच्छे से कर रहा था उसको ज्यादा इंटेलिजेंट माना जाता था एज कंपेयर टू अदर्स. सो बायनेट की जो थ्योरी है वो बहुत सिंपल है, लाइक वेरी मच सिंपल टू इट, राइट. बायनेट की थ्योरी में ज्यादा कुछ नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल वन एज इट अरोज फ्रॉम हिज इंटरेस्ट इन डिफरेंशिएटिंग. बायनेट ने सिर्फ इतना काम किया कि उसने मोर इंटेलिजेंट को फ्रॉम द लेस इंटेलिजेंट इंडिविजुअल डिफरेंशिएट किया. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स कंसिडर, आई डोंट हैव अ स्पेस ओवर हियर, so let me put this into in here. Let for example, आपका एक एग्जाम है जिसका नाम है X, ठीक है. उस एग्जाम मतलब वो आपकी एक ओवरऑल परफॉर्मेंस है, उसी पर आपको जज किया जाएगा, ठीक है. उस पर्टिकुलर एग्जाम को डिवाइड किया जाता है कि आप एग्जाम में क्या लिखते हैं, ठीक है. दैट इज अबाउट 100 मार्क्स का, ये 100 मार्क की असेसमेंट है आपकी X की, ठीक है. एग्जाम में आप क्या लिखते हैं, आपकी अटेंडेंस कितनी है, आपका लर्निंग कैसा है, 10, 60, 70, देन आपकी असाइनमेंट्स जो उन्होंने दी हैं आपने कैसे किया, राइट. एंड मोर ओवर आपकी राइटिंग स्किल कैसी है. सो 50, 60, 70, 80, 90, राइटिंग स्किल 20 कर देते हैं, ठीक है. सिंपल. बायनेट, आप बायनेट के अकॉर्डिंगली अटेंशन, ये लर्निंग, आपने राइटिंग स्किल, ये सारी कॉग्निटिव एबिलिटीज है, क्रिएटिविटी, सब कुछ कॉग्निटिव है. सो बायनेट कहते हैं जिस इंसान ने इन सब, इस पर्टिकुलर असेसमेंट में जो X था उसमें 100 आउट ऑफ 100 लिए, उसे हम मोर इंटेलिजेंट कहेंगे एज कंपेयर टू द पर्सन जिसने शायद एग्जाम में उसने अच्छा नहीं किया पर उसकी अटेंडेंस अच्छी थी, उसकी लर्निंग अच्छी थी, उसकी राइटिंग स्किल अच्छी थी, पर अगर उसके 100 में से आपके 40 आ रहे हैं तो यू आर लेस इंटेलिजेंट देन दिस पर्सन, ठीक है. बायनेट ने बहुत सिंपल चीज की, वेरी सिंपल, इन अ वेरी सिंपलर टर्म्स उन्होंने एक्सप्रेस किया कि आपकी जो थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है दैट इज वेरी सिंपल, एट इज अरोज फ्रॉम इंटरेस्ट इन डिफरेंशिएटिंग. सीधा या तो इंडिविजुअल बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है या तो वो बहुत कम इंटेलिजेंट होता है, बीच में है ही नहीं, एवरेज है ही नहीं इंडिविजुअल का. दैट इज द मेजर कंसेप्ट ऑफ बायनेट, ठीक है. सो देयरफॉर कंसेप्चुअलाइजिंग इंटेलिजेंस इज कंसिडर्ड as considering one similar set of ability which can be used for solving any or every problem. So according to Binet, यही जो एग्रीगेट है कॉग्निटिव एबिलिटीज का, इसी को यूज किया जाता है टू सॉल्व एनी और एवरी प्रॉब्लम इन्वायरमेंट की, जिसे हम इंटेलिजेंस कहते हैं. सो आई बिलीव कि बायनेट ने तो बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया था अपनी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस. मतलब ज्यादा तो है ही नहीं, चिकचिकी नहीं है. अकॉर्डिंग टू बायनेट की थ्योरी में बड़ा सिंपल है कि जो इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस है वो सेट है एग्रीगेट एबिलिटीज का, ठीक है. कॉग्निटिव एबिलिटीज जो है वो सेट है इसमें, और वही एबिलिटीज को यूज कर कर वो हर कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट में, और तो कुछ है ही नहीं बायनेट की थ्योरी में, राइट. एंड ही वाज द एल्फ्रेड बायनेट, एज आई अगेन आई एम गोइंग टू रिकैपिटुलेट कि एल्फ्रेड बायनेट पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस पे काम किया. इजंट इट क्लियर? अच्छा, बायनेट की थ्योरी को हम यूनी थ्योरी, व्हाट इज दिस यार, यूनी थ्योरी और वन फैक्टर थ्योरी ही कहते हैं. सो
किस थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को हम यूनी और वन फैक्टर थ्योरी कहते हैं? डेफिनेटली बाइनेट की। बाइनेट की थ्योरी को क्यों हम वन फैक्टर और यूनी कहते हैं? बिकॉज इट वाज द बाइनेट जिन्होंने कहा कि एक इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस जज होगी ऑन द बेसिस ऑफ सेट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, एग्रीगेट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज पर आपकी इंटेलिजेंस जज होती है। दैट इज व्हाई बाइनेट की थ्योरी को हम यूनी और वन फैक्टर थ्योरी कहते हैं। इजंट इट क्लियर? बट एज आई सेड कि बहुत डिस्प्यूटेड थ्योरी थी ये, बिकॉज बॉडी मतलब इंटेलिजेंस एज अ कंसेप्ट तो अब पता चलता है कि वो तो बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है इंटेलिजेंस, है ना। और ये थ्योरी बहुत सिंप्लीफाइड थी अकॉर्डिंग टू बाइनेट। बाइनेट ने तो कहा कि नहीं, टू रीजन वेल, टू जज वेल एंड टू अंडरस्टैंड वेल इज ओनली द इंटेलिजेंस हैज टू डू विद इट। सो बाइनेट की थ्योरी बहुत डिस्प्यूटेड रही, बिकॉज व्हेन साइकोलॉजिस्ट एनालाइज करने लगे डेटा बाइनेट के टेस्ट से, सो दैट वाज अ वेरी मच बड़े फ्लॉड डेटा मिलने लगा, राइट। आप या तो किसी को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट कहोगे या तो किसी को बहुत कम इंटेलिजेंट कहोगे। सो आई गेस this much we are very much clear. So before moving on to the important questions, I just want to recapitulate certain things कि हमने start किया intelligence की definition के साथ, and according to us intelligence, according to the definition of intelligence, it's a global capacity to understand the world, to act rationally and to face challenges head on, that is known as intelligence. ठीक है, डेफिनेशन इज वेरी मच क्लियर। देन वी केम कि साइकोलॉजिस्ट थे, काफी साइकोलॉजिस्ट आए जिन्होंने इंटेलिजेंस पर काम किया, एंड आपके पॉइनियर कौन थे? एल्फ्रेड बाइनेट। मिस्टर बाइनेट की थ्योरी बहुत सिंपल रही, इंटेलिजेंस इज टू जज वेल, नो वेल एंड अंडरस्टैंड वेल। काफी डिस्प्यूटेड थ्योरी थी बिकॉज इट वॉज वेरी 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 सिंपलर एज कंपेयर टू द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। वेशलर आते हैं, दे से एल्फ्रेड बाइनेट के बाद आपके वेशलर आए। उन्होंने कहा ये जो एल्फ्रेड थ्योरी दे रहा है ऑन दैट इंटेलिजेंस, दैट इज वेरी मच फ्लॉड। इतना सिंपल कंसेप्ट तो इंटेलिजेंस का है ही नहीं। व्हाट अबाउट इंडिविजुअल एक्ट कैसे करता है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, वो इन्वायरमेंट में अडेप्ट कैसे करता है, दैट इज नोन एज इंटेलिजेंस। वेशलर के बाद गार्डनर आते हैं जिन्होंने एक स्टेप और अहेड मूव किया। उनके अकॉर्डिंगली, गार्डनर स्टर्नबर्ग के अकॉर्डिंगली इंटेलिजेंस क्या है? मॉडिफिकेशन। सिर्फ अडेप्टेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, आप मॉडिफाई कैसे करते हैं अपने बिहेवियर को, एक्ट कैसे करते हैं उसके अकॉर्डिंग, दैट इज नोन एज इंटेलिजेंस। दैट इज क्लियर, राइट। देन हमने ये भी पढ़ा कि थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, आई विल सजेस्ट द स्टूडेंट्स कि अगर आप नोट्स बना रहे हैं, ट्राई मेकिंग चार्ट आउट ऑफ इट, या पॉइंटर्स में या चार्ट, क्योंकि जब रिवीजन की बारी आएगी दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू। सो थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस को ब्रॉडली क्लासिफाई किया दो पार्ट में। वन वॉज साइकोमेट्रिक, जिसे हम स्ट्रक्चरल अप्रोच भी कहते हैं, द अदर वन वॉज द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, राइट। So psychometric structural approach क्या कहती है? This particular approach was based on set of cognitive abilities. कि एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को आप जज कैसे करेंगे? उसकी एबिलिटीज पर। जो उसकी बेसिक कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं, वो इन्हीं बेसिक कॉग्निटिव एबिलिटीज को यूज करता है टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। Whereas on the other hand, very simpler theory, Whereas on the other hand, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी क्या होती है कि उस इंफॉर्मेशन को एक इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन तो लाता है, उसे परसीव कैसे करता है, इंटेलेक्चुअल रीजनिंग के साथ अंडरस्टैंड कैसे करता है, और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करता है, और एनवायरनमेंट में एक्ट कैसे करता है, दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। बाइनेट साइकोमेट्रिक में थे, वो साइकोमेट्रिक अप्रोच थी उनकी, और बाइनेट की थ्योरी को हम क्या कहते हैं? बाइनेट थ्योरी, जस्ट बाइनेट थ्योरी को यूनी और वन फैक्टर थ्योरी भी कहा गया है। क्लियर? सो किस थ्योरी को यूनी और वन फैक्टर कहा गया? एल्फ्रेड बाइनेट की थ्योरी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड बाइनेट, individual performance has to be judged on set of cognitive abilities. Is that clear?
So we, as I told you, theories of intelligence काफी broad chapter है, काफी broad, काफी wider scope रखता है. So we will continue theories of intelligence in the next lecture. Till then, I'm going to give you some important questions, which will help you to revise it. हमने जो अभी तक पढ़ा. Number one question to for us is, which one of the following is or are domains of psychological attributes? So as I told you, as we started in lecture 1 में भी हमने पढ़ा variations in psychological differences attributes पे, ठीक है. So psychological attributes कौन कौन से थे जो हमने majorly पढ़े थे? That was intelligence, that was your creativity, that was your values, that is your aptitude, right? Domains जिसमें एक individual दूसरे individual से different होता है, उसे हम psychological attribute कहते हैं. Creativity, values, personality, right? Intelligence and interest. दो लोगों का creativity, एक ज्यादा creative होगा, एक कम creative होगा. दो लोगों का value, because एक अलग अलग जगहों से वो आते हैं, उनके अलग अलग values को वो represent करते हैं. Personality is altogether very different of two individuals. No, एक same persona हो ही नहीं सकता दो individuals का. And your intelligence, that is very much different. एक individual का दूसरे individual से बहुत different intelligence IQ रहता है. And your interest, various people, they have various type of interest. ठीक है. So according to our first question, which one of the following is or are domains of psychological attribute? Is intelligence a psychological attribute? Yes, very much. What is wrong with it? Just a minute. So is intelligence a psychological attribute? Yes. Aptitude is a psychological attribute, again yes. And personality is also psychological attribute. So right answer is all of the above, D. Right? Next is, the next question to you is, which one of the following statement is correct about psychological attribute? So just can you tell me कि कौन सी statement है जो correct है psychological attribute में? क्या ये बहुत linear concept होता है psychological? For example, अभी हमने intelligence को touch किया, क्या बहुत static concept था? अगर इतना स्टैटिक होता तो हम बाइनेट की थ्योरी के बाद साइकोलॉजिस्ट काम ही नहीं करते उस पर्टिकुलर थ्योरी पर नहीं. इट्स नॉट अ लीनियर कंसेप्ट. बाइनेट की थ्योरी को डिस्प्यूटेड और फ्लॉड इसीलिए कहा गया क्योंकि वो यूनिफैक्टर थ्योरी थी, यूनिडायमेंशनल थ्योरी थी. एंड अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट एक पर्टिकुलर डोमेन, एक साइकोलॉजी का आपका इंटेलिजेंस एक यूनिडायमेंशनल हो ही नहीं सकता. ठीक है. So according to psychologists, no, a particular domain of psychological attribute आपका unidimensional नहीं है. Are they complex and multidimensional? Definitely they are very much complex and multidimensional. जैसे हमने intelligence पढ़ा, एल्फ्रेड बाइनेट ने अलग कहा, वेस्लर ने कहा adaptation, गार्डनर स्टर्नबर्ग ने कहा मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर. सो एक कॉम्प्लेक्स आइडिया रहता है और काफी मल्टी डायमेंशनल है. राइट. सो दे कैन बी एक्सप्रेस इन सिंपलर टर्म्स. अगर एक्सप्रेस होते तो सिर्फ बाइनेट की थ्योरी was satisfactory to us, but rather than sticking to that thing, हम psychologists they started digging well on the intelligence, and we have a lot of theories about intelligence. So the right answer is your C. They are complex and multi-dimensional. So question number 3. Which one of the following is true regarding intelligence? As we have studied intelligence, so कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि इंटेलिजेंस को बेटर डिफाइन कर पा रहा है? क्या इंटेलिजेंस इज द ग्लोबल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड वेल? आई थिंक सो. आई गेस जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग तो यही है कि इट्स अ ग्लोबल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड. Is intelligence to think rationally whether the particular thing is right and wrong? Very much yes. Is intelligence meaning use of available resources effectively? Yes. Effectively to deal with his or environment. So according to me, the answer should be D, that intelligence is the global capacity to understand the world, think rationally about it, and to use available resources effectively and purposefully to deal with environment. So that is known as intelligence. And the question number 4 says, किस साइकोलॉजिस्ट ने डिफाइन किया इंटेलिजेंस को एज द एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड टू रीजन वेल. सो वो एक ही साइकोलॉजिस्ट था जिसने बड़ी सिंपलर भाषा में एक सिंपल बात की विद नो बकवास कि इंटेलिजेंस इज योर इंडिविजुअल एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड टू रीजन वेल. दैट वाज मिस्टर बाइनेट. So Binet के accordingly it is a
इंटेलिजेंस इज एन एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड टू रीजन वेल। जहां वेशलर कहते हैं इंटेलिजेंस इज एन एबिलिटी टू अडेप्ट टू द environment. Gardner and Sternberg कहते हैं it's not only adaptation, it's the modification of behavior that is known as intelligence. Clear? Next. Last question. Who defined it as the global and aggregate capacity of an individual to think rationally, act purposefully, and to deal effectively with his or her environment? किसने डिफाइन किया इंटेलिजेंस को? एक कैपेसिटी, एग्रीगेट कैपेसिटी एक इंडिविजुअल की टू थिंक रैशनली, एक्ट पर्पसफुली और इफेक्टिवली अपने इन्वायरमेंट के साथ डील करने में। डू यू थिंक गार्डनर ने ये डेफिनेशन दी थी? गार्डनर ने तो कहा था कि मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, शेपिंग ऑफ बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। तो डील इफेक्टिवली किसका था? अडेप्टेशन किसका कंसेप्ट था? वेशलर का, राइट? सो इट वाज द साइकोलॉजिस्ट वेशलर हु वाज अ साइकोलॉजिस्ट जिसने डेफिनेशन ये दिलाई थी कि इट इज द अडेप्टेशन, इंटेलिजेंस इज द अडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट। सो आई गेस दिस चैप्टर इज वेरी मच क्लियर टू यू। सो थैंक यू सो मच।